Okay, all right. Today we are going to discuss about the functions of language. What are the celebrated functions of a language? How does language behave? और लैंग्वेज जो है वो किस तरह से काम करती है? ये एक्चुअली हमारा टारगेट होगा आज के सेशन में। इस हवाले से विटगेंस्टन की ये स्टेटमेंट काफी अप्रोप्रिएट है। द लिमिट्स ऑफ माय नॉलेज आर द लिमिट्स ऑफ माय वर्ल्ड। जितना यहाँ नॉलेज से मुराद बेसिकली आपकी वो लैंग्वेज है, वो टूल है जिसके जरिए आप चीजों को सीखते हैं। सो लैंग्वेज प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। इंसानी जिंदगी में इसका किरदार बहुत ही नुमाया। लैंग्वेज के जो क्लेम के मतलब फंक्शंस के हवाले से जो क्लेम किया जाता है कि ये सबसे ज्यादा वाइब्रेंट टूल है when you are part of this world। और खास तौर पर हम जब भी लैंग्वेज की बात करते हैं we always say that it's important tool of communication। so यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ये टूल क्यों का अहम है हमारे वर्ल्ड में। अगर हमारी इस दुनिया के अंदर जहां पर हम जी रहे हैं, अगर लैंग्वेज ना हो तो क्या क्या नताइज भुगतने पड़ सकते जी। रीडर, Language has very important role in every type of communication. Being a linguist so student, we must language aware to has a very important role in every type of communication जी। language is a system of speech sound which is used to communicate being by a public linguist user. student, being a linguist, we must aware The role of the role of we must aware the role of these functions, how these functions you can say work in, where language works जी। language is a system of speech sound which is used to communicate by public user. हाँ, यानी Language कि itself apparently जब भी ये कहा जाता है कि लैंग्वेज क्या है तो सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड्स है। तो ये स्पीच साउंड्स का एक ऐसा निजाम है which is used to communicate by public users। जो पब्लिक यूजर्स जो हैं वो उसको कम्युनिकेट करते हैं। it works really helpful जी। language itself serves as a means of communication and as a means of sharing ideas and feelings. It Feelings is a tool that अगर आपके पास ये लैंग्वेज ना हो तो ये आप कभी भी कम्युनिकेट ना कर पाए, आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस को कभी भी एक्सप्रेस
ना कर सकते। So the credit ultimately goes to this language कि जिसकी मदद से आप आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, आप इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी, It is a tool that is often used in day-to-day communication. डे टू डे Through language, कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल आपको नजर आता है, एंड वी नो कि हम साइन लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते, रादर वी कम्युनिकेट थ्रू आवर सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। जी, through language, human can transfer a variety of message either for himself or for another person. Basically, the language has certain functions that are used based on one needs. हाँ, The function are maybe as a means of self-expression, as a communication tool, as a means of social culture relation, and as a means of social control. सोशल कंट्रोल। तो ये मतलब ये जो फंक्शंस हैं, ये ब्रीफली अगर हम लोग इन फंक्शंस की बात करें तो आप मींस ऑफ लैंग्वेज जो है वो मींस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन भी है। यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ एज अ मीन, as a communication tool, as a means of social cultural relations, as a means of social control. The main function of language is communication for to convey information. It has much wider functions that are as follows. और कौन-कौन से functions हैं जो मोस्ट ब्रॉडली ये कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो परफॉर्म करती है? जी, The main function of language is a communication for to convey information. It has much wider function are as follow. For practical purpose, establishing relation in practical daily life. purposes, establishing relations in daily life. अगर लैंग्वेज नहीं है और अगर आप pragmatic यू कैन से स्कोप पे जाना चाहते हैं, pragmatic इंफॉर्मेशन पे जाना चाहते हैं, pragmatic you can say इसकी यूज पे जाना चाहते हैं, तो then you must accept that establishing relations in daily life, इसका पर्पस जो है वो क्या होगा कि डेली लाइफ को एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिशिंग ऐसे ताल्लुकात बनाना जिससे हम इंसान एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के कम्युनिकेट कर सके। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम लोग कभी भी रिलेशंस बिल्डिंग नहीं कर सकते, हम दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फॉर आर्टिस्टिक पर्पस, ह्यूमन प्रोसेस एंड यूज of language as beautiful and beautifying to the satisfaction of human aesthetic taste. And this is also very important in this perspective कि आप artistic sense में अगर जाके बात करें तो आपके पास आज जितना भी लिटरेचर नजर आता है वो दुनिया की किसी भी जुबान में आपके पास हो, हम मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो लिटरेचर कभी आ सकता है। उसके पीछे वजह बड़ी सादा सी है कि उसके ना आने के पीछे जो वजह है कि लैंग्वेज ही नहीं होगी तो लिटरेचर कहां से। तो लिटरेचर के वजूद के पीछे जो सबसे बड़ी मतलब जो है वो टूल मौजूद है वो लैंग्वेज का, और एस आर की टू लर्न अदर नॉलेज, के दुनिया के अंदर जितना भी इस वक्त इल्म है वो बुनियादी तौर पर लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है। और अदर नॉलेज में लाइक आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है टू इन्वेस्टिगेट द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉर कल्चर एंड कस्टम्स, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडी है, जो सोशियोलॉजिकल स्टडी है ऑफ मैन, वो भी इसी लैंग्वेज के जरिए पॉसिबल। सो ये अगर आप ये कहें कि द मेन जनरल फंक्शंस, यानी कि अगर आप जनरल फंक्शंस की द मेन जनरल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आर कम्युनिकेशन फॉर टू कन्वे, यू कैन से आर हैं कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है फॉर टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ये असल। और इसके अलावा मतलब जो है वो वाइडर फंक्शंस के तौर पर बाकी और चीजें भी एग्जिस्ट है। नेचुरली इन दिस यू कैन से आर्टिकल जो अभी आपके साथ बात होगी इसमें मेरा तज़किरा आपके साथ
उन अब फंक्शंस के ऊपर बात होगी कि हम लैंग्वेज को किस तरह से मतलब जो है वो टेक ऑन करते हैं कि ये किन किन फंक्शंस में अपना रोल प्ले करती है। जी रीडर, रीडर, Yes, sir. Language as a means of communication. It serves as a means of communication between members of the public. पब्लिक The या function is जो हमारी पब्लिक लाइफ है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनके दरमियान इसका सबसे बड़ा काम यानी कि सोशल इंटरेक्शन का जो काम है वो ये करती है। यानी कि इंसान की आइडेंटिटी जो है वो इसी मतलब टूल से बरकरार है। variety of environments, levels and interests are diverse. For example, scientific communication, business communication, workplace communication, social communication and cultural communication. culture. के गर्ज के आप अगर आसान लफ्जों में कह दें तो ये जितना भी आपको जो सोशल इंटरेक्शन होती दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी यानी कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितनी भी इंटरेक्शंस मौजूद हैं उनमें जो सबसे ज्यादा उसमें जिस टूल का सबसे ज्यादा अहम किरदार है वो आपके पास लैंग्वेज ही है। जी Language as a means of adaptation. जी It is the means of adaptation and people can express their views together. For अगर example, लफ्ज अडेप्टेशन की बात करें तो मैंने आपके साथ बात की है कि यू कैन से व्हेन यू आर गोइंग टू जो अडेप्टिंग समथिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू यू कैन से ऑप्टिंग समथिंग, आप मतलब जो है वो कोई चीज चूज कर रहे होते हैं, तो ये एक अहम तीन सोर्स है अडेप्टेशन का। और लोग जो हैं वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस देयर व्यूज टुगेदर। The reliability of the work in an institution, the integrity of employees in a department, family honor, the integrity of cooperation in the field of business, the integrity of nation and state. अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि you adapt the things, और फिर जो है वो लोग इसके जरिए जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट को मतलब ऑप्ट करते हैं। फिर रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क इन एन इंस्टीट्यूशन, कि ये अंदाजा हम लोग कर पाते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह से मतलब जब वो काम कर रहा है उसके पीछे भी लैंग्वेज अहम तीन किरदार अदा करती है। द इंटेग्रिटी ऑफ एम्प्लॉइज इन अ डिपार्टमेंट, के एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी इंटेग्रिटी क्या होगी। फैमिली ऑनर जो वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगी। द इंटेग्रिटी ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, कि लोग बिजनेस में एक दूसरे के साथ किस तरह से तावन करते हैं, चीजों को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। द इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, फिर इवन कौम और रियासत की जो जिसको आप नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग के तौर पर आप देखते हैं, उसका उसके पीछे भी जो असल में सबसे बड़ा हाथ हमें नजर आता है वो इसी लैंग्वेज का नजर आता है। तो लैंग्वेज नेचुरली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। जी language as a means of social control. सोशल कंट्रोल का ये अहम तरीन, अब सोशल कंट्रोल से क्या मुराद है कि इस माशरे को जब्त में रखना। मसलन सपोज अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर आप मतलब जो है वो कोई भी शख्स जो है वो घर के अंदर ही जो है वो कोई गलत काम करे तो फैमिली उसको रोकती है। अगर रियासत के अंदर गलत काम करे तो उसको बाकायदा कवानीन, और कवानीन जो है वो लैंग्वेज किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। जो पीपल इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन, तो जो सोशल कंट्रोल है, कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। एवरी जेस्चर एंड सिंबल्स इंडिकेट्स दैट direction of communication in society. This control language can be realized in the form, rules, statutes, laws and others and others. अब ये जो बात है laws और फिर laws and others और others and others के यहाँ पर आप के कवानीन किस तरह से होंगे, मुख्तलिफ किस्म के स्टेच्यूज जो हैं जो कॉमन लॉज हैं आपके डे टू डे बेसिस के ऊपर जो कवानीन बनाए जाते हैं, जो आपके बुनियादी तौर पर आपके जो है वो रस्म रवायात पर मबनी जो कवानीन है उनको हम लोग स्टेच्यूज के तौर पर देखते हैं। तो ये वो बुनियादी यू कैन से
कि अगर आपने माशरे को कंट्रोल करना है, माशरती कंट्रोल के लिए भी अगर कोई एक अहम टूल मौजूद है तो हम उस टूल को मतलब जो है वो लैंग्वेज के तौर पर जानते हैं। एंड लैंग्वेज बिहेव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ली के मतलब इन इम्पोर्टेंट वे जो है वो ये काम करता है, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आप जो है वो आपको अपने बॉस या सीनियर की तरफ से कोई हदायत आती है, अगर टीचर की तरफ से कोई हदायत आती है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी, Language as a means to understand oneself. राइट। In building, जी, in building the character of a person, he should be able to understand his weakness, हाँ, strength. यानी कि मीन्स टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। अगर आपने एक शख्स को करेक्टर बिल्डिंग करनी है तो उसको सबसे पहले अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, टैलेंट, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, विलिंगनेस एंड सो फोर्थ, ये तमाम चीजें जो है वो समझ, उसको अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए। और जब उसको वो अपनी कैपेसिटी, और हम उसको ये समझा तभी सकते हैं जब हम लैंग्वेज का यूज करें हैं, या वो हमें अपने टैलेंट के मुतालिक एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू हिज कम्युनिकेशन। अ पर्सन कैन नाउ हिमसेल्फ एंड अदर इफ ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, और बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिम someone will be able to build character, learn positive image to create a new vision। तो यहाँ पर उसको मतलब जो है वो मैन्युफैक्चर बनना पड़ेगा, वहां पर उसको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना होगा। और कम्युनिकेशन के लिए जिस चीज का सहारा उसको लेना पड़ेगा, नेचुरली वो जो टूल होगा वो लैंग्वेज का ही टूल है। जी, Language as a means to understand the other person. For effectiveness of communication, one needs to understand another person, such as in understanding him with the understanding of a person. Use of language, आप he किसी can दूसरे recognize. बंदे के मोटिव्स को नहीं समझ सकते जब तक वो आपके सामने कम्युनिकेट नहीं करता। और हम लोग ये मतलब ये नहीं कह सकते, नो डाउट उसका मतलब जो है वो रख रखाव जो है वो नेचुरली काम करेगा, मैं इस बात से नहीं इनकार कर रहा, लेकिन इसके बावजूद अगर प्रॉपर और कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने किसी शख्स की डेवलप करनी है तो यू आर इन नीड टू लेट हिम टू स्पीक, कि उसको बोलने देना होगा, वो बोलेगा तो उसका पता चल सकेगा कि वो किस जगह पर फॉल कर रहा है। तो another person such as understanding him, with the understanding of a person, use of language, he can recognize various things, include the condition of his own, the potential biological, intellectual, emotional, intelligence character paradigms, the underlying thought, motive, the development of itself and others। तो अब ये जो चीजें हैं कि आपने किसी दूसरे शख्स को भी अंडरस्टैंड करना है, उसको भी आपने देखना है कि जनाब उसकी वर्थ क्या है। और नेचुरली ये फिर सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल इंटरेक्शन का नाम की बात हो रही है। तो आप अगर सोशली किसी शख्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर भी आपको जिस अफेक्टिव टूल की जरूरत पड़ेगी वो टूल जो है वो आपका लैंग्वेज टूल होगा। लैंग्वेज के जरिए जो है वो आप ये बात मतलब जो है वो किसी भी शख्स की अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, Language as a means of observing the environment around. हमारे इर्द गिर्द जो Lang- इन्वायरमेंट है, हम उस इन्वायरमेंट को मतलब जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टूल टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम एंड गिव रियल लाइफ सॉल्यूशंस, कि हम रियल लाइफ सॉल्यूशंस जो हैं वो इसके साथ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द बैकग्राउंड फॉर ऑब्जर्वेशन, हाउ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व, कि आपको अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट, उसके वो आपका सोशल इन्वायरमेंट है, वो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वो आपका जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। तो आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बतलाने के लिए भी अगर आपको जिस टूल की जरूरत पड़ेगी वो आपका यही टूल आप लैंग्वेज होगा, जिसके जरिए आप अपनी बात को इन अ प्रॉपर वे कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप हाइपोथेसिस क्या है, हाउ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मसाइल कैसे हल करने हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व, कि आपने उस आइडेंटिफाई करना है उस ऑब्जेक्ट को जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, हाउ टू ऑब्जर्व, व्हाट द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग, हाउ द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट कंक्लूजंस। ये वो तमाम चीजें हैं जो मोर और लेस हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज
जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही होती है और जो है वो एनवायरनमेंट को एक्सप्रेस कर रही होती है जी। Language as a tool for self-expression. We use language to express the feelings, emotion, and passion. As adults, we use language both to express them and to communicate. So सेल्फ we can write एक्सप्रेशन to के लिए express. भी सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। आपके व्हाट गोज इनसाइड यू, हाउ you can perceive the things, what are your observations about the society and like what things, कि आपका मतलब उस हवाले से क्या स्टांस है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए मतलब लैंग्वेज जो है वो का होना जरूरी है। लैंग्वेज के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि लैंग्वेज प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम जो है वो किसी भी शक्ल में इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि लैंग्वेज जो है वो जो है वो एक इंसान के व्हाट गोज इनसाइड उसको मतलब जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है वो इशारों का नायों में सिग्नल साउंड सिग्नल्स के अलावा अदर सिग्नल्स के लिए हम लोग अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। So we can try to express ourselves. हम लिख कर, for example, we may remember when we were happy, we collect our feelings and experience in a book called diary. कि हम बेशक आपकी pains and sufferings and whatsoever you write into your diary. As we write something in diary, we do not think about who the readers. We just love our hearts and feelings without thinking about whether it's writing to understand other people or not. तो ये मतलब जो है वो हमारे पास कि हम किसी के लिए नहीं लिख रहे होते, बल्कि ऑल दोस फीलिंग्स जो हैं वो बेसिकली हमारे अपने साथ एसोसिएट होती हैं। हम उनको जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम उनको जो है वो मतलब जो है वो अपने लिए मतलब जो है वो बता रहे होते हैं। So at the time of using language, a tool of express ourselves, we need not consider or care who the listener or reader. We use language only for private purposes as means to express self-expression. It tells everything that is hidden in our hearts and minds. तो जो हमारे hearts और mind में मौजूद है, it tells everything that is hidden. With language, humans can learn everything, and they want it about social and natural science. तो जो कुछ वो social और natural science के हवाले से मतलब जो वो कहते हैं, वो हर चीज जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी, कम्युनिकेट जो है वो की जा सकती है। सो लैंग्वेज जो है वो बुनियादी तौर पर सेल्फ एक्सप्रेशन का नाम है, सोशल इंटरेक्शन का नाम है। और हम लोग जो है वो इस बात को भी मतलब जो है वो कहने में हक बजानत है कि ये अगर ये तमाम लैंग्वेज जो है वो अगर ना हो तो लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकेगी। हम हकीकत को मतलब स्ट्रक्चर नहीं कर सकते रियलिटी को जो है, और ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस को जो है वो मैच्योर करती है। तो वो कौन सा जरिया है जहां पर लैंग्वेज का रोल मौजूद नहीं है, या जहां पर हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। So we must accept this phenomena as well, that language helps in all domains of life. कि हर डोमेन के अंदर जो है वो हमारी मदद कर रही होती है। और अगर ये ना हो तो फिर आप ये मतलब क्लियरली इस बात को समझ लें कि हम लोग जो है वो कभी भी जो है वो एक अच्छी दुनिया जो है वो यहाँ पर बना नहीं सकेंगे। That's overall about your functions of language.